کلاس 10th اور اس کا انگلش کلاس 10th اور یونٹ نمبر 1 جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ایمباڈیمنٹ آف جسٹس. ایمباڈیمنٹ ہم کہتے ہیں کوئی چیز جو ایک لیونگ ایگزامپل ہو کسی چیز کی, اس کو ہم ایمباڈیمنٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, ریپرزنٹیشن. ٹھیک ہے, آپ جو ہے انصاف, پیکر انصاف جسے بولتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیکر انصاف, کہ انصاف کے پیکر تھے, کہ آپ سے زیادہ کوئی بھی بڑا منصف جو ہے اس دنیا میں وہ نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو یہ سارا لیسن جو ہے ہم اسی کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں. نیکسٹ ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ہمارا ٹرانسلیشن کے 2 پیراگرافس جو ہیں وہ رہ گئے تھے. پیج نمبر میرے پاس کلاس 10th کی انگلش جو ہے ٹیکسٹ بک, اس کا پیج نمبر 4 ہے, اور پیج نمبر 4 میں پوائنٹ نمبر 7 ہے یا پیراگراف نمبر 7. یہاں سے ہم نے جو ہے وہ ٹرانسلیشن شروع کرنی ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں. while حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was on his death bed. while جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے on his death bed اپنے بستر مرگ پر. سے جب آپ کے وصال کا وقت قریب تھا, ٹھیک ہے, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مرگ پر تھے, he proclaimed. proclaimed کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا, ڈکلیئر. proclaim کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا. آپ نے اعلان کیا. if I owed, ہم کس کو بولتے ہیں؟ مقروض, قرضدار, کسی کا قرضہ دینا ہو. ٹھیک ہے, مقروض. ٹھیک ہے, آپ نے اعلان کیا if I owed something to anyone. if I owed something, کہ اگر میں نے کسی کا کچھ دینا ہے, to anyone, کسی کا, کہ اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہے. اور if I wronged any person, wronged, کہ آپ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ کچھ غلط کر لیتے ہیں, لوگوں کو بھی برا بھلا کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور if I wronged any person, یا کسی سے کوئی غلطی کی ہو, اور damaged anyone's property. damage کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تباہ کرنا. damage تباہ کرنے کو بولتے ہیں, خراب کرنا, تباہ کرنا. اور damaged یا نقصان پہنچانا. ٹھیک ہے, دونوں میننگ آپ یوز کرتے ہیں اس میں. نقصان پہنچانا, کہ if I owed something to anyone, کہ اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہے. اور if I wronged any person, یا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کسی شخص کے ساتھ. اور damaged anyone's property. property ہم جائیداد کو بولتے ہیں, یا کسی کی جائیداد کو نقصان پہنچایا ہو. پراپرٹی جائیداد کو بولتے ہیں, یا کسی کی جائیداد کو نقصان پہنچایا ہو. اور آنر, یا کسی کے وقار کو. مائی پرسن, میری ذات. مائی آنر, میری عزت. اینڈ مائی پراپرٹی, اور میری جائیداد. آر ہیئر, سب یہاں ہے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مرگ پر تھے, مین سے کہ آپ کے وصال کا وقت قریب تھا. ہی پروکلیمڈ, آپ نے اعلان کیا. if I owed something to anyone, اگر میں نے کسی کا کوئی قرض دینا ہے. اور if I wronged any person, یا کسی کے ساتھ کوئی غلطی ہو گئی ہو. اور damaged anyone's property, اور honor, یا کسی کی جائیداد یا وقار کو نقصان پہنچایا ہو. my person, میری ذات. my honor, میری عزت. and my property, اور میری جائیداد. are here, سب یہاں ہے. میری ذات, میری عزت اور میری جائیداد سب یہاں ہے. He may take revenge. revenge انتقام کو بولتے ہیں, بدلہ لینا. revenge انتقام کو کہتے ہیں, بدلہ لینا. He may take revenge, وہ on me, وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. In this world, اس دنیا میں. He may take revenge on me in this world, وہ اس دنیا میں مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. There was complete silence. complete مکمل طور پر, silence خاموشی, مکمل طور پر خاموشی تھی. Only one person, صرف ایک شخص, demanded
ڈیمانڈ کا مطلب ہوتا ہے مطالبہ کرنا. ڈیمانڈڈ, صرف ایک شخص نے مطالبہ کیا, صرف ایک شخص نے مطالبہ کیا a few dirhams, کچھ درہم کا, which were paid to him, جو اس کو ادا کر دیے گئے. There was complete silence, مکمل طور پر خاموشی تھی. Only one person demanded a few dirhams, صرف ایک شخص نے کچھ درہم کا مطالبہ کیا, which were paid to him, جو اسے ادا کر دیے گئے. ہم ایک دفعہ اور ٹرانسلیشن کریں گے اس کی. While حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was on his death bed, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مرگ پر تھے, he proclaimed, آپ نے اعلان کیا, if I owed something to anyone, اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہے, کسی کا کچھ قرض دینا ہے, اور if I wronged any person, یا میں نے کسی کے ساتھ کوئی غلطی کی ہے, or damaged anyone's property or honor, یا کسی کی جائیداد یا وقار کو نقصان پہنچایا ہے, my person, میری ذات, my honor, میری عزت, and my property are here, اور میری جائیداد یہاں پر ہے. he may take revenge on me in this world, وہ مجھ سے اس دنیا میں بدلہ لے سکتا ہے. there were complete silence, مکمل طور پر خاموشی تھی. only one person demanded a few dirhams, صرف ایک شخص نے کچھ درہم کا مطالبہ کیا, which were paid to him, paid, ادا کرنا, جو اس کو ادا کر دیے گئے. paid ادا کرنے کو بولتے ہیں, which were paid to him, جو اس کو ادا کر دیے گئے. پیراگراف نمبر 8 ہے Allah's messenger, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم proved, ثابت کیا, by his own example, اپنی مثال سے. حضور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مثال سے ثابت کیا that no one could be more firm for justice than him, کہ کوئی بھی ان سے زیادہ انصاف کے لیے ثابت قدم نہیں ہو سکتا. Allah's messenger صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم proved, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت کیا, by his own example, اپنی مثال سے, that no one could be more firm for justice than him, کہ کوئی بھی ان سے زیادہ انصاف کے لیے ثابت قدم نہیں ہو سکتا, even if it was against his own interest. interest mean advantage, اس کے اپنے ذاتی فائدے کے, اگرچہ یہ ان کے اپنے فائدے کے خلاف کیوں نہ ہو, or the interest of those who are near and dear to him, یا ان کے فائدے کے خلاف جو آپ کے بہت قریب اور آپ کے عزیز ہوں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مثال سے ثابت کیا کہ کوئی بھی ان سے زیادہ انصاف کے لیے ثابت قدم نہیں ہو سکتا, even if it was against his own interest, اگرچہ یہ ان کے اپنے فائدے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, اور the interest of those, یا ان کے فائدے کے خلاف ہو, who were near and dear to him, جو آپ کے بہت قریب ہوں یا آپ کے عزیز ہوں. He decided, آپ نے فیصلہ کیا, every case, ہر معاملے کا, brought to him, جو آپ کے پاس لایا گیا. کیس ہم مقدمے کو بھی بولتے ہیں. آپ کے پاس جو بھی مقدمہ لایا گیا, آپ نے اس کا فیصلہ کیا, by friend or foe with justice, چاہے وہ دشمن یا دوست ہو, چاہے وہ آپ کا دوست ہو یا دشمن ہو, آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا, without fear, بغیر کسی خوف کے, اور favor, یا حمایت کے. He decided every case brought to him by friend or foe with justice, آپ کے دوست یا دشمن میں سے جو مقدمہ بھی آپ کے سامنے لایا گیا, آپ کے دوست یا دشمن کی طرف سے جو مقدمہ بھی آپ کے سامنے لایا گیا, آپ نے بغیر کسی خوف یا حمایت کے انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ کیا. A person of such magnitude, میگنیٹیوڈ ہم عظمت کو بولتے ہیں, میگنیٹیوڈ عظمت کو کہتے ہیں.
मैग्नीट्यूड अजमत को कहते हैं। अ पर्सन एक शख्स ऑफ सच मैग्नीट्यूड इतनी अजमत वाला या ऐसी अजमत वाला एक शख्स ट्रांसेंड्स ट्रांसेंड्स का मतलब होता है जो बंदा सब चीज़ों से बालातर होता है, मुआवरा होता है जो चीज़ों से। ट्रांसेंड्स द बैरियर्स, बैरियर्स रुकावट को बोलते हैं। ट्रांसेंड्स का मतलब होता है कि आप इन सब चीज़ों से मुआवरा हैं, आप इन सब चीज़ों से जो है वो बालातर हैं। बैरियर्स हम रुकावटों को कहते हैं, जिस तरह हमारे बैरियर लगे होते हैं इस तरह ये भी बैरियर है, रुकावट को बोलेंगे। बैरियर्स है तो रुकावटें हो जाएगा। ट्रांसेंड्स द बैरियर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, कि वक्त और जो स्पेस है, वक्त और खला जो है, कि एज अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड ट्रांसेंड्स द बैरियर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, कि ऐसा शख्स ऐसी अजमत वाला शख्स वक्त और खला की रुकावटों से मुआवरा होता है। पीपल ऑफ ऑल एजेस, तमाम अदवार के लोग, कैन फाइंड हासिल कर सकते हैं, समथिंग कोई चीज़, इन हिज लाइफ आपकी ज़िंदगी में। तमाम अदवार के लोग अपने आप को ज़िंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में टू प्रोवाइड देम विद गाइडेंस इन देयर वेरियस फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी, कि अपनी ज़िंदगी के वेरियस फील्ड मुख्तलिफ मैदानों में विद गाइडेंस हिदायत के साथ आपकी ज़िंदगी से हिदायत हासिल कर सकते हैं। पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन फाइंड समथिंग इन हिज लाइफ टू प्रोवाइड देम विद गाइडेंस इन देयर वेरियस फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी। तमाम अदवार के लोग अपने आप को ज़िंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात से हिदायत हासिल कर सकते हैं। तमाम अदवार के लोग अपने आप को ज़िंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात से कुछ हासिल कर सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कुछ हासिल कर सकते हैं। द होली कुरान क्लियरली मेंशंस, कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है, दिस आस्पेक्ट, आस्पेक्ट पहलू को बोलते हैं, आस्पेक्ट के इस पहलू को, कुरान पाक में इस पहलू को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है, ऑफ हिज लाइफ, आपकी ज़िंदगी के। कुरान मजीद में आपकी ज़िंदगी के इस पहलू को वाज़ेह तौर पर, क्लियरली वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। इंडीड देयर इज़, बेशक, इन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, यू हैव अ गुड एग्जाम्पल, आपके लिए एक बेहतरीन मिसाल है, टू फॉलो फॉर हिम, कि आप उनकी पैरवी करें, हु होप्स फॉर द मीटिंग विद अल्लाह, कि जो कोई अल्लाह ताला एंड द लास्ट डे, और यौम आखिरत में अल्लाह ताला से यौम आखिरत में मिलने की उम्मीद करता है, एंड रिमेंबर्स अल्लाह मच, और जो अल्लाह को कसरत से याद करता है या अल्लाह ताला को बहुत याद करता है। कुरान, द होली कुरान क्लियरली मेंशंस दिस एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, कुरान पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इस पहलू को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। ये आगे कुरान मजीद की एक आयत है जिसका तर्जमा है, इंडीड इन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, कौन है मैसेंजर ऑफ अल्लाह? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के बेशक अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, यू हैव अ गुड एग्जाम्पल टू फॉलो फॉर हिम, आपके लिए एक बेहतरीन मिसाल है कि आप उनकी पैरवी करें, हु होप्स फॉर द मीटिंग विद अल्लाह एंड द लास्ट डे, लास्ट डे ऑफ जजमेंट को बोलते हैं, लास्ट डे यौम आखिरत को, क़यामत के दिन को, क़यामत के रोज़ को भी कहते हैं, कि जो कोई क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला से मिलने की उम्मीद रखता है, एंड रिमेंबर्स अल्लाह मच, और अल्लाह को बहुत ज़्यादा या अल्लाह को कसरत से याद करता है। हम एक दफ़ा फिर इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, कल जो है हम इसकी एक्सरसाइज जो है इंशाल्लाह वो करेंगे। पैराग्राफ नंबर 7 है, पेज नंबर 4, मैं इसकी बामुहावरा तर्जमा जो है एक मरतबा फिर कर देता हूँ, प्लीज़ अटेंटिवली आप इसको सुनिएगा। वाइल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑन हिज डेथ बेड, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर विसाल पर थे, ही प्रोक्लेम्ड, या बिस्तर मर्ग पर थे, मीन टू से कि आपके विसाल का वक़्त करीब था,
He proclaimed, आपने ऐलान किया, if I owed something to anyone, अगर मैंने किसी का कोई कर्ज देना है, और if I wronged any person, या मैंने किसी से कोई गलती की है, या मुझसे किसी के साथ कोई गलती हुई है, और damaged anyone's property, या किसी की जायदाद और ऑनर या वकार को नुकसान पहुंचाया हो, माई पर्सन मेरी ज़ात, माई ऑनर मेरी इज़्ज़त, एंड माई प्रॉपर्टी और मेरी जायदाद और हेयर यहाँ मौजूद है. ही मे टेक रिवेंज ऑन मी, वो मुझसे बदला ले सकता है, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, वो मुझसे इस दुनिया में बदला ले सकता है. देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, मुकम्मल तौर पर खामोशी थी. ओनली वन पर्सन डिमांडेड, सिर्फ एक शख्स ने मुतालबा किया, अ फ्यू दिरहम्स, कुछ दिरहम का. सिर्फ एक शख्स ने कुछ दिरहम का मुतालबा किया, विच वर पेड टू हिम, जो उसको अदा कर दिए गए. Allah's messenger proved by his own example, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल से साबित किया, that no one could be more firm for justice than him, कि कोई भी उनसे ज़्यादा इंसाफ के लिए साबित कदम नहीं हो सकता. Even if it was against his own interest, यहाँ तक कि अगरचे ये उनके अपने फ़ायदे के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, और द इंटरेस्ट ऑफ दोज, या उनके फ़ायदे के ख़िलाफ़ हो, who were near and dear to him, जो आपके बहुत करीब और अजीज़ हों. He decided every case brought to him by a friend or foe, आपके दुश्मन या दोस्त की तरफ से, आपके दुश्मनों या दोस्तों की तरफ से, आपके दुश्मन या दोस्त की तरफ से कोई भी मुकदमा जब आपके सामने लाया गया, विदाउट फियर ऑफ फेवर, आपने बगैर किसी खौफ या हमायत के उसका फैसला किया, कि आपके दोस्त या दुश्मन की तरफ से कोई भी मुकदमा आपके पास लाया गया, आपने बगैर किसी खौफ या हमायत के इंसाफ के साथ उसका फैसला किया. अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड हम अजमत को बोलते हैं. ट्रांसेंड्स, जो शख्स मावरा है, कोई एक ऐसा शख्स, एक ऐसी अजमत वाला शख्स जो वक्त और अखलाक की रुकावट से मावरा होता है. पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन फाइंड समथिंग इन हिज लाइफ टू प्रोवाइड देम विद गाइडेंस इन देयर वेरियस फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी. पीपल ऑफ ऑल एजेस, तमाम इदवार के लोग, कैन फाइंड समथिंग इन हिज लाइफ टू प्रोवाइड देम विद गाइडेंस, अपने आप को हिदायत देने के लिए, या अपने आप को हिदायत देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हिदायत हासिल कर सकते हैं. इन देयर वेरियस फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी, ज़िंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में. तमाम अदवार के लोग अपने आप को ज़िंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात से हिदायत हासिल कर सकते हैं. द होली कुरान clearly mentions this aspect of his life. कुरान पाक, आस्पेक्ट कहते हैं पहलू को, कुरान मेंशन का मतलब होता है बयान करता है, क्लियरली वाज़े तौर पे. कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इस पहलू को वाज़े तौर पर बयान करता है. इंडीड इन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में you have a good example to follow for him. आप बेशक अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आपके लिए एक बेहतरीन मिसाल है कि आप उनकी पैरवी करें. Who hopes for the meeting with Allah and the last day, जो कोई यौम आखिरत या रोज़े आखिरत और रोज़े आखिरत में अल्लाह से मिलने, जो कोई भी रोज़े आखिरत में अल्लाह से मिलने की होप्स, उम्मीद करता है, कि जो कोई भी यौम आखिरत पे अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता है, एंड रिमेंबर्स अल्लाह मच, और अल्लाह ताला को कसरत से याद करता है, जो अल्लाह ताला को कसरत से याद करता है. तो हमने ये इसकी स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन जो है, ठीक है, वो कंप्लीट कर ली है. हमारा यूनिट नंबर 1 जो था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस, कि ये सारे का सारा चैप्टर जो है, यूनिट जो है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ के ऊपर लिखा गया है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के पास जब भी कोई यहूदी जो कि आपके बदतरीन दुश्मन थे, ठीक है, या आपके दोस्तों में से या आपके दुश्मनों में से कोई भी अपना कोई मुकदमा, कोई केस, कोई सूट्स लेकर आते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर किसी आप फेवर के, बगैर किसी हेल्प के, बगैर किसी मदद के, बगैर किसी खौफ के और बगैर किसी हमायत के यहूदियों को उनके कवानीन के मुताबिक फैसला करते थे। आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि यहूदी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन थे, वो भी अपने मुकदमात के फैसले करवाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे, क्योंकि उनको भी इस चीज़ के ऊपर यकीन था कि आपसे ज़्यादा बड़ा कोई इंसाफ पसंद, कोई मुनसिफ, कोई जज जो है वो इस दुनिया में नहीं है। तो इसलिए वो भी आपके पास अपने मुकदमा लेकर आते थे। तो कुरान मजीद भी वाज़ेह तौर पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो ये पहलू है, ठीक है, उस पर रोशनी डालता है, उसको वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि आप सब में अगर कोई शख्स, क्योंकि आपने अपनी मिसालों से ये साबित कर दिया था कि आपसे ज़्यादा कोई भी बड़ा इंसाफ पर साबित कदम रहने वाला जो है वो नहीं हो सकता, और आपने कभी ये नहीं देखा कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ठीक है, ये मुस्लिम है या ये यहूदी है। फैसला जो भी मुकदमा आपके सामने आया है, आपने इंसाफ के साथ जो है, ठीक है, उसका फैसला किया था। तो ये हमारा लेसन था यूनिट नंबर 1। इसकी ट्रांसलेशन हमने कंप्लीट कर ली है, मुकम्मल हो गया हमारी ट्रांसलेशन। अब इसमें कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट हैं, उसके उर्दू मीनिंग्स भी लिखती हैं। कल हम जो है वर्ड के डिफिकल्ट मीनिंग्स इन इंग्लिश वो भी डिस्कस करेंगे, और साथ में जो है इसकी एक्सरसाइज, ठीक है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।